Uh, in last lecture in the class, I discussed the compound microscope. So first of all, we revise the topic, starting topic, compound microscope. With the help of compound microscope, we can see a smaller object, and its principle is if an object is placed just outside the focus. There are two lenses in compound microscope. One lens is known as objective lens, which is nearer to object, and other lens is called eye lens, which is nearer to eye. So there are two lenses. Uh, so if an object is just placed outside the focus of objective lens, so real and inverted image is obtained, and this image is worked as a object for eye lens. So final image is formed at infinity, uh, or least distance of distinct vision. And its construction is there are two tubes, metallic tubes, which are slide inside to each other. At the outer end of the one tube, at the outer end of the two tubes, two lenses are situated. One is called objective lens, and other is called eye lens. Objective lens is having the smaller focal length and a smaller aperture. It is a nature of lens is convex lens, and for nearer to eye and or eye lens, it is a comparatively larger lens, a larger focal length, larger aperture, but really it is also smaller. तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे ज्यादा फोकल लेंथ होगी आई लेंस की, अपर्चर भी लार्जर होगा, लेकिन रियली ये दोनों ही स्मॉलर हैं. ठीक है. Now we find the magnifying power. And magnifying power we find that in two cases. ध्यान से देखिए बेटा, in two cases. When image from the least distance of distinct vision, इसका सेंस क्या होता है बेटा? least distance of distinct vision. अगर हम जैसे अपने हाथ को मान लीजिए अपने आई के पास लाए बेटा, तो मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होती है जहां तक हम ऑब्जेक्ट को क्लियर देखते हैं. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. And next case, we find the magnifying power at when image is formed at infinity. Infinity is also known as a normal adjustment. This case is also known as normal adjustment. Now we discuss magnifying power, particular magnifying power. It is defined as the ratio of angle subtended by image to the angle subtended by object. M is equal to beta over alpha. When both are situated at the least distance of distinct vision. मतलब इमेज भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो रही है, और जो हमने एंगल अल्फा मेजर किया तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ पे है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है. तो m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, एंड इफ बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, so m is equal to 10 beta over 10 alpha. For a smaller angle, in the place of alpha, we put 10 alpha, we take 10 alpha. In the place of beta, we take 10 beta. Now in this case, we draw the diagram in such a way. Here, AB is the object, and from AB, we take two rays. One ray is parallel to principal axis, it is passes through its focus, FO. And other ray passes through optical center C, and these two refracted rays are meet at the point B dash. So A dash B dash is the image of AB. A dash B dash is the image of AB, and this image A dash B dash worked as an object for eye lens. So final image is formed A double dash B double dash. Here we take A double dash B double dash. For image formation, we take two rays. One ray passes through optical center, and other it is parallel to principal axis. So it is passes through its focus. ठीक है बेटा. तो ये आगे देखिए कहीं मीट नहीं कर रही है. अगर हम इनको बैक साइड में इंक्रीज करें, दे आर मीटिंग बी डबल डैश. सो ए डबल डैश बी डबल डैश
are the image is the image of object A dash B dash. So A dash B dash worked as an object for I lens. Final image is formed A double dash B double dash. And this image is formed at distance d. Least distance of distinct vision represented by the distance d. So if we take tan alpha, we find tan alpha. So here object A double dash Q is placed at d distance, and this angle is alpha. So tan alpha is equal to A double dash Q upon C dash A double dash. Perpendicular upon base is called tan theta, and A double dash Q is equal to AB. क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट AB जो है उसको 25 पे रख के हमने एंगल फॉर्म जो है मेजर किया वो अल्फा मेजर किया. Beta, is the angle formed by image at the eye. So we find tan beta. We find the tan beta from the two ways. इस ट्रायंगल में आप फाइंड कर लेंगे तो a dash b dash अपॉन c dash a dash हो जाएगा. आप इसमें भी फाइंड कर सकते हैं बेटा tan beta a double dash b double dash अपॉन c dash a double dash. So we now discuss here tan beta and tan alpha. So m is equal to beta upon alpha is equal to tan beta upon tan alpha. Tan alpha is equal to a double dash q upon c dash a double dash perpendicular upon base. And now we find a double dash q is equal to ab. Tan beta is equal to a double dash b double dash upon c dash a double dash. A double dash b double dash upon c dash a double dash, height upon base. So if we put the values of tan alpha and tan beta from equation 2 and 3 in equation 1, then m is equal to tan beta upon tan alpha. So c dash a double dash c dash a double dash are cancelled to each other. A double dash b double dash upon a double dash q. A double dash q is the object size of object, same size of the object AB. So in the place of a double dash q, we put AB. So m is equal to a double dash b double dash upon AB. And if we divide this equation by a dash b dash, divide and multiply. So multiply a dash b dash, divide by a dash b dash. So a dash b dash upon AB, a double dash b double dash upon a dash b dash. Here a dash b dash means image formed by the objective lens, size of image, AB size of object. So it is this ratio is known as magnification produced by objective lens, MO. And a double dash b double dash upon a dash b dash is the magnification produced by ME. So magnifying power is equal to MO into ME. MO into ME. So capital M is equal to MO into ME. MO means magnification produced by objective lens, and ME means magnification produced by eye lens. But we know that M is equal to B upon U. Magnification M is equal to B upon U. Linear magnification M is equal to B upon U. For objective lens, MO is equal to B naught upon U naught, and ME is equal to BE upon UE. B upon U is general formula. For eye lens, we take BE and UE, and for objective lens, take BO and UO. Put this value in equation number 4. Put this equation number 4. So M is equal to B naught upon U naught into BE upon EU. Now we use lens equation for eye lens. Lens equation 1 upon B minus 1 upon U is equal to 1 upon F. For eye lens, 1 upon BE minus 1 upon UE is equal to 1 upon FE. So 1 upon BE minus 1 upon UE is equal to 1 upon FE. ठीक है बेटा. अब देखिए, multiply both sides by BE. Multiply both sides this equation by BE. So BE upon BE, that means 1. BE upon UE is equal to BE upon FE. If we change the side, so BE upon FE is negative sign, and BU upon UE coming right hand side, so its sign is positive, negative, positive, positive, negative. So 1 minus BE minus UE, 1 minus B upon FE is equal to BE upon UE.
So in the place of BE upon UE, we put 1 minus BE upon FE. So formula for uh, magnifying power is also known as angular magnification. So M is equal to BU upon UO minus 1 minus BE upon FE. Now, if we use sign convention, so in the direction of incident ray, distance is positive, and in opposite direction it is negative. So BO is positive and UO is negative, and VE is equal to minus T. और अगर फिगर में भी हम देखें बेटा तो आप इसको समझ सकते, देखिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, so UO measure in opposite direction, so it is negative, and BO measure in same direction, so it is positive. BE is equal to D. Direction of incident in this way, and distance is measured in this way. So BE is equal to, we take minus D. So from figure UO positive, UO negative, BO positive, and V is equal to minus D. Put this sign in the formula. So M is equal to, ध्यान से देखें बेटा, M is equal to plus BO minus UO 1 minus D upon FE. 1 minus D upon FE. Minus into minus is a plus, so 1 plus D upon FE minus B naught upon U naught. It is the formula for magnifying power. If we find magnifying power, so we put numerical value, only numerical value, BO, UO, D and FE. We cannot give the sign. अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हमने इसमें पहले से साइन ले लिए बेटा, इसलिए हम किसी का साइन इसमें नहीं रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में. कैपिटल एम हम साइन केवल मैग्नीफाइंग पावर को देंगे, अगर न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं तो एम को साइन देंगे, और एम का साइन इसमें होता है नेगेटिव. अब वो नेगेटिव क्यों है देखिए ध्यान से, इसको भी एक बार समझ लें. जैसे इसमें आ रहा है कि एम इज इक्वल टू माइनस आ रहा है, ठीक है, तो इसमें एम का साइन नेगेटिव होता है, तो अगर हम एम का साइन लेंगे, ठीक है, तो वो नेगेटिव आएगा. नेक्स्ट जो है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस. So from figure, distance between the two lenses is, ध्यान से देखें, this distance is BO and this distance is here, this distance is UE. So distance between the two lens, objective lens and eye lens, BO plus UE. BO plus UE, ठीक है बेटा. लेकिन इसमें देखिए फिगर में UE निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे इसमें बेटा, मैग्नीट्यूड ले लेंगे बेटा. ध्यान देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो लेंथ हो जाएगी BO प्लस UE, मैग्नीट्यूड ऑफ UE. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट केस. इसमें भी आप एक चीज और ध्यान से सुन ले बेटा. देखिए, सो L इज इक्वल टू हो जाएगा आपका BO प्लस मैग्नीट्यूड UO. सिंस ऑब्जेक्ट जस्ट प्लेस्ड आउटसाइड द फोकस, ऑब्जेक्ट इज जस्ट प्लेस्ड आउटसाइड द फोकस, सो बी टेक UO नियरली इक्वल टू FO. ठीक है, तो जहां हमारे पास UO है उसकी जगह हम FO यूज कर लेंगे. ठीक है, और इस कंडीशन में इमेज इज फॉर्म नियर टू लेंस इनसाइड द फोकस, नियर टू आई लेंस. सो इन द प्लेस ऑफ B नॉट, we take length of the microscope. So formula is M is equal to minus L upon FO 1 plus D upon FE. अब आप देखो बेटा, FO और FE, FO is smaller, M is larger, FE is also smaller, M is larger. तो FO स्मॉलर है, मच स्मॉलर है, तो M लार्जर हो गया. FE कंपेरेटिवली लार्जर है, लेकिन वो भी स्मॉलर है, इसके एक्चुअली वो भी स्मॉलर है, तो ये दोनों स्मॉलर होंगे. FE और FO जब दोनों स्मॉलर होंगे तब जाके M लार्जर होगा. नाउ वी डिस्कस सेकंड केस. सेकंड केस मींस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और नॉर्मल एडजस्टमेंट. मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी or at normal adjustment. Magnifying power when image is formed at infinity or at normal adjustment. देखिए, अब इसका पहले आप फिगर समझ लें एक बार ध्यान से, और फिर इसका मतलब डेरिवेशन. देखिए बेटा, इसमें जो फिगर है AB वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस
and we take two rays. One ray is parallel to principal axis and other is passes through the optical center. These two rays meet at the point B dash. अब यहाँ से देखें, these two rays meet at the point B dash. So A dash B dash is the image formed of the object AB. तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज है बेटा. If this image A dash B dash, this image A dash B dash is formed at the focus of I lens. मतलब इसमें A dash और F दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं. मतलब ये जो A dash B dash है वो फोकस पे आ गई F पे. Then final image is formed at infinity. आपने पढ़ा होगा कॉन्वेक्स लेंस में कि if object placed at focus then image is formed at infinity. तो फॉर इमेज फॉर्मेशन बी टेक टू रेज. पहला रेज लीजिए आप, ये इसके फोकस से जाएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से लगे, तो ये दोनों रेज कहीं नहीं मीट करेंगे, लेकिन बैक साइड में आप इसे ड्रॉ करोगे तो इन्फिनिटी पे आपके फॉर्म होंगे, मीट करेंगे, बिकॉज पैरेलल रेज आर सपोज टू बी मीट एट द फोकस और मीट एट द इन्फिनिटी. तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इन्फिनिटी पे. इट इज ऑल्सो नोन एज, दिस केस इज ऑल्सो नोन एज इमेज मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. तो जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो हमको केस कौन सा डिस्कस करना है? जब इमेज इन्फिनिटी फॉर्म होती है बेटा. अब ध्यान से देखें आप, इसके लिए फॉर्मूला वही है बेटा. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट प्लेस एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो m इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा. और 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, जब आप 10 अल्फा निकालेंगे तो वही फॉर्मूला जाएगा हाइट अपॉन बेस से a डबल डैश q अपॉन c डैश a डबल डैश. 10 बीटा हम निकालोगे तो हाइट अपॉन बेस से a डैश b डैश अपॉन c डैश a डबल डैश. ठीक है. और इसमें एक चीज ध्यान से देखें, जब हमने 10 अल्फा 10 बीटा निकाल लिया और फिगर से भी आप समझ सकते हैं इसको. देखिए ये एंगल तुम्हारा बेटा ये अल्फा है. ध्यान से देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ माना, ये एंगल अल्फा है. तो 10 अल्फा हो जाएगा हाइट अपॉन बेस a डबल डैश q अपॉन c डैश a डबल डैश 10 अल्फा. तो ये देखिए इसमें जो 10 अल्फा है a डबल डैश q अपॉन c डैश a डबल डैश, ये आ गया. ये एंगल हमारा देखिए बीटा है, तो 10 बीटा हो जाएगा हाइट अपॉन बेस से. तो देखिए हाइट जो है इसका a डैश b डैश है और बेस हो गया c डैश a डैश. तो देखिए 10 बीटा आ गया आपका. पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा में, तो ये आपका ये आ जाएगा a डबल डैश q इज इक्वल टू ab. क्योंकि जो ऑब्जेक्ट AB था हमने 25 सेंटीमीटर मींस डी डिस्टेंस रख के हमने अल्फा मेजर किया. तो a डबल डैश q मींस ऑब्जेक्ट है, तो इसका साइज a डबल डैश q इक्वल टू AB हम ले सकते हैं. तो आपने क्या किया कि जो a डबल डैश q है उसके प्लेस पे आपने AB पुट कर दिया. तो देखिए बेटा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन AB और ये हो जाएगा c डैश a डबल डैश अपॉन c डैश a डैश. ये चीज आ गई. ठीक है. A dash B dash upon AB is known as MO, magnification produced by objective lens. C dash A double dash means D distance and C dash A dash means UE. It is the distance of object from eye lens. तो MO into D upon UE. ठीक है बेटा. लेकिन जो MO होता है वो हमारे पास होता है BO अपॉन UO. B अपॉन U जनरल फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए BO अपॉन U आ गया बेटा. DE अपॉन यूई, DE अपॉन यूई, तो ये आपका DE अपॉन यू सेम रहा इसमें. अब देखिए हमने इसमें साइन कन्वेंशन लिया बेटा. साइन कन्वेंशन क्या होगा? प्लस BO माइनस UO. और D जो है वो नेगेटिव है, पहले मैंने भी बताया था, और UE जो है वो माइनस FE होगा. ध्यान से देखें UE जो है माइनस FE है क्योंकि इमेज रेट चल रही इस तरह से बेटा और हम इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे. तो UE FE की इक्वल है लेकिन वो माइनस है. तो हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू प्लस BO अपॉन माइनस UO इंटू माइनस D अपॉन माइनस FE. सो देयर आर 3 माइनस साइन, सो रिजल्टेंट साइन इज आल्सो माइनस. तो फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस B नॉट अपॉन U नॉट T अपॉन FE. ठीक है बेटा. अगर हम लेंस ये लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप फाइंड करें तो B नॉट डिस्टेंस, देखिए ये वाला डिस्टेंस जो है वो B नॉट है और इधर से ये UE है. ठीक है बेटा. तो B नॉट अपॉन UE, लेकिन UE हमारा FE के इक्वल है तो FE. तो B नॉट प्लस FE. हियर FE इज द फोकल लेंथ ऑफ द फॉर आई लेंस. ठीक है बेटा.
तो इसमें जो है ये जो है बेटा मैंने कंप्लीट आपको करा दिया। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। और इसके बाद जो है फिर हम टेलीस्कोप शुरू करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है बेटा? तो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा चेंज करने के लिए, पीडीएफ चेंज करने के लिए। ठीक है बेटा? नाउ वी डिस्कस टेलीस्कोप बेटा, और हम जो है टेलीस्कोप को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? देखिए बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ध्यान से समझना इसको। विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी कैन सी द फार ऑब्जेक्ट। इसका जो वर्क होता है टेलीस्कोप का, वो फार ऑब्जेक्ट। तो इसका जो वर्क है वो फार ऑब्जेक्ट को देखना होता है बेटा। ठीक है? इसमें भी टू टू मेटेलिक ट्यूब्स होती हैं। देयर आर टू मेटेलिक ट्यूब्स व्हिच आर स्लाइड इनसाइड टू ईच अदर। ठीक है? At the outer end, convex lens is taken. It is called objective lens, and the other end, other second outer tube, and other end, there is a another convex lens is taken. It is called eye lens. इसमें फर्स्ट लेंस होता है, इट इज हैविंग लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर, ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड फॉर आई लेंस इट टेक्स स्मॉलर फोकल लेंथ एंड स्मॉलर अपर्चर। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का लार्जर फोकल लेंथ है, लार्जर अपर्चर है। इसका सेंस होता है इसकी लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा होगी। जब आप स्टार या सन देखेंगे तो ज्यादा लाइट गैदर होनी चाहिए। तो लार्जर फोकल लेंथ होना चाहिए, लार्जर अपर्चर, बड़ा लेंस होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है कि इसमें जो फार ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज बनेगी। अब वो इमेज वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, सो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और एट इंफिनिटी। जो कोई ऑब्जेक्ट होता है हमारे आई पे जो एंगल बनाता है बेटा, उसे विजुअल एंगल कहते हैं। तो चाहे टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, इन सभी का वर्क होता है विजुअल एंगल को इंक्रीज करना। अगर विजुअल एंगल लार्जर होगा तो उसका साइज हमको लार्जर दिखाई देगा। So in first case, we find the magnifying power when image formed at infinity or normal adjustment. ध्यान से देखें बेटा। अब देखिए, मैग्नीफाइंग पावर when image formed at infinity। अब इसमें देखो बेटा, the rays which are coming for the rays which are coming from a far object are parallel to each other, but they are not parallel to principal axis। आपने देखा जो रेज इसमें दिखाई दे रही है बेटा, ये रेज जो है, ये वाली रेज आपस में पैरेलल हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। सो दे मीट एट ए पॉइंट बी डैश एट द फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन के पॉइंट बी डैश जाके मीट करेंगे। वैसे क्या था बेटा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें क्या होता था कि जो रेज हैं वो फोकस मीट करती थी। अगर ये पैरेलल रेज हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं तो फोकस मीट करती थी। लेकिन इसमें क्या है कि रेज आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, जो बी डैश पे मीट कर रही है बेटा। ठीक है? So A dash B dash, A dash B dash is the image formed by objective lens, ठीक है, of the far object। तो पहला इमेज जो आई वो A dash B dash आई, and A dash B dash worked as an object for eye lens। तो फर्स्ट लेंस की जो इमेज है सेंड करिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो A dash B dash worked as an object। So for the image formation, we take parallel rays of principal axis, it is passes through focus, and another ray taken the optical center। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर से ये रेज आ रही है, पैरेलल रेज इसके फोकस से आएगी। सो these two parallel rays meet at the infinity। So this case is called when image formed at infinity or normal adjustment।
And in this case, magnifying power is defined as the ratio of angle uh, obtained angle formed by the image at the eye to the angle of formed by the object at the eye when both are situated in infinity. तो ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर है बेटा, और जो इमेज बनती है ये भी इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो दोनों इन्फिनिटी पे हैं। तो m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर स्मॉलर, सो बी टेक टेन बीटा एंड टेन अल्फा। अब देखो बेटा, ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, तो ये अल्फा आ गया। टेन अल्फा हो जाएगा हाइट अपॉन बेस, ये इसके फोकस पर आ रही, तो ये एफ हो, जो ये बेस होगा वो फोकल लेंथ के इक्वल होगा। ये एंगल बीटा है तो हाइट अपॉन बेस से आपको इस एंगल में हम ले लेंगे तो टेन बीटा आ जाएगा बेटा। सो एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू a dash b dash upon ca dash, a dash b dash upon ca dash, and 10 beta is equal to 10 beta is equal to हाइट अपॉन बेस आप यूज करें बेटा, ठीक है। तो आप देखेंगे 10 बीटा इज इक्वल टू a dash b dash upon c dash a dash, a dash b dash upon c a dash. If we put this value 10 beta and 10 alpha in this equation, 10 beta upon 10 alpha, so we put the value a dash b dash upon c dash a dash, a dash b dash upon c a dash. So a dash b dash are cancelled to each other. M is equal to c a dash upon c dash a dash. अब फिगर आप देखें ध्यान से बेटा, तो सी ए डैश जो है वो प्लस एफ ओ है, सी ए डैश प्लस एफ ओ है, और सी डैश ए डैश जो है वो माइनस एफ ई है। आप फिगर में भी चीज देख लें। देखिए जब आप फिगर में इस चीज को देखेंगे बेटा, तो देखो ये जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, तो प्लस एफ ओ, और ये एफ ओ जो इमेज जो है वो एफ ई पर भी फॉर्म होगी, मतलब इसका फोकस एफ ओ और इधर का फोकस एफ ई, ये कॉन्साइड कर रहे हैं। जब लेकिन जब ये डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन मेजर होगी, तो ये डिस्टेंस हमारी माइनस एफ ई होगी। हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये माइनस एफ ई है। मतलब अगर डिस्टेंस की तरह हम फोकल लेंथ को ले रहे हैं बेटा, तो उसमें प्लस और माइनस दोनों देंगे। और केवल अगर हम फोकल लेंथ ही डिस्कस कर रहे हैं, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो इसमें फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंथ की होती है पॉजिटिव होती है। तो इसमें देखेंगे आप जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा था एम इज इक्वल टू सी ए डैश अपॉन सी डैश ए डैश, तो इसमें जो सी ए डैश है वो प्लस एफ ओ है और सी डैश ए डैश माइनस एफ ई है। आप वैल्यू पुट कर दें बेटा, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस एफ ओ अपॉन माइनस एफ ई। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई बेटा। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप मींस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंसेस, तो इधर से एफ ओ है, इधर से ये मैग्नीट्यूड में ये एफ ई हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई। तो इसका जो फॉर्मूला है लेंथ का वो हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट केस, मींस सेकंड केस बेटा। देखिए ध्यान से, सेकंड केस सेकंड का सेंस होता है बेटा मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज फॉर्म दैट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मिरर। मतलब टू केसेस में डिस्कस करते हैं, कोई सा भी पहला केस हो सकता है, चाहे इन्फिनिटी बने चाहे डी पे बने, ये दो केस डिस्कस करें। तो इन्फिनिटी वाला हमने डिस्कस कर लिया, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला। अब डिस्टेंस अब डिस्कस कर रहे हैं हम लीस्ट डिस्टेंस वाला। तो मैग्नीफाइंग पावर when image formed at the least distance of distinct vision। अब देखो बेटा, पैरेलल रेज आ रही है, द रेज which are coming from far object are parallel to each other but they are not parallel to principal axis, ठीक है बेटा। तो इसकी इमेज बनती है a dash b dash और it is worked as an object for eye lens, so final image is formed at a double dash b double dash, ठीक है बेटा। तो फाइनल इमेज जो है वो किस पे फॉर्म हो रही है, ए डबल डैश बी डबल डैश पे, ठीक है। फिर आप देख लें जो ये वाली रेज हैं वो बी डैश पॉइंट पे मीट करती हैं, तो ए डैश बी डैश ये इसकी इमेज हो गई। दिस इमेज वर्कड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, सो फाइनल इमेज फॉर्म ए डबल डैश बी डबल डैश। इसमें आप देखेंगे जो ये रेज पहले रेज आती है इसको आप पीछे तरफ खींचे बेटा, जैसे ये रेज आ रही है यहाँ से और ये रेज आ रही है इस तरह से। जब इन दोनों को हम ये खींच देंगे बेटा, ठीक है, आप इसको जैसे ये सीधी जा रही है बेटा, इसको भी पीछे टाल लेना और इसको भी पीछे खींचना, तो ये बी डबल डैश से मीट करेगी। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है। ये रेज जो है ना, ध्यान से देखें, ये रेज जो जाएगी ना इसको पीछे आप खींचे, और ये वाली रेज को जैसे टर्न कर रहे हैं ना यहाँ से, तो इस रेज को पीछे खींचे, तो ये दोनों रेज बी डबल डैश जाके मीट करेगी, यहाँ पे जाके मीट करेगी।
So A dash B dash is the image formed by objective lens, and A double dash B double dash is the image formed by eye lens. Since m is equal to 10 beta upon alpha, uh, same definition है. KT defined as the ratio of angle subtended by image at the eye to the angle subtended by object at the eye. When image is situated at d distance and object situated infinity, far object है तो object कहाँ होगा, infinity पे होगा. Beta upon alpha, if beta and alpha are very small, so m is equal to 10 beta upon 10 alpha. Now we put the value of 10 alpha. We find the value of 10 alpha. So 10 alpha is equal to height upon base. A dash B dash upon C A dash. ये फिगर से आ जाएगा A dash B dash upon C A dash. और 10 बीटा हो जाएगा A dash B dash upon C dash A dash. ध्यान से आप देखना बेटा, जो 10 अल्फा है, इधर ध्यान से देखना, ये 10 अल्फा है तो A dash B dash upon C A dash मतलब हाइट अपॉन बेस. ये बीटा एंगल है तो 10 बीटा फाइंड करोगे तो हाइट अपॉन बेस से ये हाइट A dash B dash हाइट हो गई अपॉन C dash A dash, या पूरे वाले ट्रायंगल लोगे तो A डबल डैश B डबल डैश हाइट हो गई और C डैश A डबल डैश ये बेस हो गया. तो आपने क्या किया कि 10 बीटा और 10 अल्फा की आपने वैल्यू फाइंड कर ली बेटा. ठीक है, तो देखो 10 अल्फा हमने फाइंड किया A डैश B डैश अपॉन C A डैश. 10 बीटा हमने फाइंड किया A डैश B डैश अपॉन C डैश A डैश बेटा. ठीक है, ये दोनों हमने इसलिए समझ लिया कि A डैश B डैश यहाँ से कैंसिल हो जाए. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा एंड 10 बीटा इन दिस इक्वेशन. आप इस इक्वेशन में आपको इसको पुट कर दें बेटा. तो आपने वैल्यू पुट कर दी तो A डैश B डैश अपॉन C डैश A डैश, A डैश B डैश अपॉन C A डैश. तो A डैश B डैश आर कैंसिल टू ईच अदर, सो इट इज इक्वल टू C डैश A डैश अपॉन C A डैश अपॉन C डैश A डैश बेटा. अब आप फिगर में देखें तो C A डैश हमारा FO है और C डैश A डैश जो है वो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस UE है. सो इसमें m इज इक्वल टू जाएगा बेटा FO अपॉन UE. m इज इक्वल टू FO अपॉन UE. और अगर हम साइन कन्वेंशन लेते बेटा तो ये प्लस FO होगा और माइनस UE होगा, प्लस FO अपॉन माइनस UE. नाउ वी राइट द लेंस इक्वेशन फॉर आई लेंस. तो आप देखें 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F से बेटा. तो 1 अपॉन BE माइनस 1 अपॉन UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE. तो हमने आई लेंस के लिए इक्वेशन नोट कर दी बेटा. अब इसमें देखिए ये 1 अपॉन FE आप इस साइड में ले आए बेटा और ये UE वाला टर्म इधर ले आए. तो 1 अपॉन BE माइनस 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन UE. तो यहाँ पर देखिए FO अपॉन जैसे हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू FO इंटू 1 अपॉन UE या FO अपॉन UE है. तो 1 अपॉन UE के प्लेस पे हम ये पूरा इसमें रख सकते हैं बेटा, ये वाला स्टेप. तो जब 1 अपॉन UE की प्लेस पे आप रखोगे बेटा इसमें, ठीक है, या ये वाला इसमें रखोगे तो m इज इक्वल टू जाएगा माइनस या m इज इक्वल टू देखा ध्यान से बेटा, जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है m इज इक्वल टू FO अपॉन FE FE अपॉन BE माइनस 1. आपने 1 अपॉन UE की वैल्यू पुट कर दी बेटा तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा. अब हम साइन कन्वेंशन लेते हैं बेटा. तो देखो साइन कन्वेंशन में FO फोकल लेंथ वही पॉजिटिव है, FE फोकल लेंथ है वही पॉजिटिव बेटा, लेकिन जो BE है वो माइनस D है. तो इन द प्लेस ऑफ B टेक माइनस D. तो आपने BE जो है माइनस D ले लिया बेटा. ठीक है, और इसमें क्या है कि ये माइनस जो माइनस है वो यहाँ से कॉमन आ जाएगा बेटा. तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा इसमें, ये माइनस कॉमन आ गया तो ये जो है वो प्लस का हो जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे. ये माइनस कॉमन आएगा तो आगे यहाँ पे फ्रंट पे माइनस आ जाएगा. तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D. तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जाता है बेटा m इज इक्वल टू माइनस FO ओवर FE 1 प्लस FE अपॉन D. इसमें हम सिंपली ये FO FE D इन सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, केवल साइन हम कैपिटल M को देंगे मैग्नीफाइंग पावर. इसी केस में देखते हैं लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप. लेंथ मींस डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस. तो ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज FO बन रही थी और इधर से ये UE है, लेकिन UE नेगेटिव होगा तो L इज इक्वल टू जाएगा FO प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ UE. L इज इक्वल टू FO प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ UE बेटा. तो बेटा ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा. और
जो नेक्स्ट टॉपिक है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसे कंप्लीट करेंगे। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा, आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। तो जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये नेक्स्ट उसमें फिर बेटा हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है।